السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ دوستو، یوں تو حکومتی کامیابیوں کی ہزار داستان رقم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو حالیہ دورہ قطر ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے قطر کود پڑا، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ شاہ جی اس کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ قسم اٹھائیے آپ کو آئی ہے؟ شاہ جی میں تو سینئر ہوں، چل جاؤں گا میں تو۔ ابھی چھوٹی سی وضاحت سے آپ کو سارے شعر کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں آتش نمرود سے ہماری مراد مہنگائی کا وہ الاؤ ہے جو پچھلی حکومت نے جلایا تھا، بھڑکایا تھا۔ یہ بیچارے تو ایک قطری خط کو تمغے کی طرح سینے پہ سجائے پھرتے رہے، اسے دودھ والا فیڈر سمجھ کے شیرخوار بچے کی طرح اسے سینے کے ساتھ لگائے پھر رہے تھے، مگر ہم نے دو بدو بات کی ہے۔ ہم نے قطری بادشاہ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کی ہے، اور ہم نے دورہ قطر سے اس محاورے کو بھی غلط ثابت کر دیا ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ نہیں، ہم نے صرف ایک ہی قطر سے دریا بہا دیا ہے۔ قطر کے شاہ نے تو شاہ محمود کے راستے میں پلکیں بچھا دی تھی، وہ تو پھر ان کے وزیروں نے شاہ کے کان میں کانا پھوسی کر کے بتایا کہ ان کے ہاں پٹھا رواج ہے، ورنہ وہ تو شاہ محمود کو شاہ اور عمران کو ہمارا وزیر سمجھ بیٹھے تھے۔ شاہ جی چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں کہ لائے کیا ہے وہاں سے؟ اپنا اٹیچی کیس اور زیتون کی 2 شیشیاں بس۔ مطلب ہے شاہ جی ملک کے لیے کیا لے کے، قوم کے لیے کیا لے کے؟ جنید آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ٹھہرے، میڈیا والوں کو تو بتانے دے کہ اصل میں ہوا کیا۔ بتائیے بتائیے دوستو، آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم نے بھی گیس کا معاہدہ کیا اور پچھلی حکومت بھی گیس کا معاہدہ کر کے آئی تھی، مگر ہماری پچھلی حکومت جو گیس لے کے آئی تھی، آپ نے دیکھا کہ سردیاں آتے ہی ماچس کی پوری تیلی جل گئی مگر گیس نہیں جلی۔ مگر ہم جو گیس لے کے آئے ہیں، آپ چولہے سے آدھا کلومیٹر دور کھڑے ہو کے ہاکی مار کا ماچس کی تیلی نکال کے جلائیں گے، چولہا آدھا کلومیٹر دور بڑک کر کے جل جائے گا۔ کیا جی یہ ہاکی مار کا ماچس کیوں؟ بیٹا اس کی تیلی ذرا لمبی ہوندی ہے، بندہ بھی تے ویکھنا میں آدھا کلومیٹر دور کھڑا کر بیٹھا۔ شاہ جی اتنا فرق ہے آپ کی اور پچھلی حکومت کی لائی ہوئی گیس میں؟ ارے پچھلی معصوم حکومت گاڑی گیس لے آئی تھی، وہ تو پائپ میں ایسے چلتی تھی جیسے پا شفیق دی سس چل دی۔ شفیق کی ساس کہاں سے آ گئی شاہ جی؟ یہ ہنسنے والی بات نہیں، اگر آپ پا شفیق کی سس دیکھ لیں، گوگے کو 3 گنا کر لیں تو وہ بنتی ہے۔ وہ خالہ جان صبح گھر سے نکلتی ہے، شام کو دیکھیں تو دروازے کے آگے ہی ہوتی ہے۔ اور ہم جو گیس لے کے آئے ہیں وہ پتلی گیس ہے۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہے ہماری سفارتکاری، یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں گیس پتلی کر کے دیجیے، انہوں نے پھر سلنڈر میں تھوڑی پتلی گیس ڈال کے ہلا کے ہمیں دی۔ دیکھیے گا ہماری لائی ہوئی گیس چولہے میں سے ایسے نکلے گی جیسے برف باری میں انسان کے قدم نکلتے ہیں۔ شاہ جی اتنی پتلی لے آئے ہو کہ چاٹی والی گیس تو نہیں لے آئے؟ جنید میاں، میں تمہاری اس چاٹی سے بہت تنگ ہوں۔ جنید یقین کیجئے کہ قطر کے شاہ کی محبت میں والہانہ پن تھا، انہوں نے ہمیں گیسو گیس کر دیا۔ جنید میاں، میزبانوں کو مجبوراً بار بار یہ اعلان کرنا پڑا، ممنوع التدخین، ممنوع التدخین، ممنوع التدخین، ممنوع التدخین۔ شاہ جی اس کا مطلب کیا ہے؟
सिगरेट नोशी मना है। अरे ये तो वही बच्चा नहीं जो आंधी चले तो सिगरेट से लिपट के लेट जाता है और सिर्फ बाजुओं की ही जप्फी नहीं लगाता, टांगों की जप्फी भी लगाता है और बाद में ये भी कहता है कि अगर सिगरेट फिल्टर वाला ना होता तो हम उड़ गए थे। हालांकि बेवकूफ को ये अंदाजा नहीं कि फिल्टर ज्यादा हल्का होता है। जी मान लिया कतर ने आपको गैसो गैस कर दिया, बल्कि जाते हुए आपको थोड़ी सी गैस दी कि ये गुब्बारों में भरने के लिए भी ले जाए। डॉलर कितने दिए शाह जी, ये बताएं डॉलर। जुनैद तो गैस नु लाइट ले रहे हैं तो गैस होती लाइट है। सोनिया तेनू लगी होवे भुख, तू 120 दी स्पीड ते घर नु जा रहा होवे और 2 गलियां पहले ही फोन मिला के साडी भरजाई नु कवे कि फटाफट रोटी अगे रख दे मेरे और घर पहुंच के कपड़े बदल के डाइनिंग टेबल ते अपने ते तेनू पता लगे हले ते चुल्ला ही नहीं बल रहा और चलो मेरे वर्गा होवे ते को गुस्सा भी कर लेंदा है। तू ते सोनिया घर विच उच्ची भी नहीं बोल सकता, सानू तेरी घर दी पोजीशन दा भी पता है। शाह जी आप कतर के साथ कोई लेन देन की बात कर रहे थे। ये लेन देन, ये दोनों लफ्ज भी पहली दफा पाकिस्तान की सफारतकारी में इस्तेमाल हुए। अच्छा, वरना सिर्फ लेन लेन ही होता रहा है। इस दफा हम देन का मुआहदा भी करके आए। हम कतर को गोश्त दे रहे हैं, गोश्त सप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम यकीन दिला के आए हैं कि सारा गोश्त पुट का होगा। तो शाह जी सारी पुट उसको दे देंगे तो सिद्ध किसको देंगे? मतलब बाकी गोश्त कैसे हम बेचेंगे यहाँ पे? जुनैद तू करना है टिच करा, तू कदी वफद दे नाल हुंदा ते तू देखता कि कतरिया ने किस तरह सैयद बादशाह दी टहल सेवा की थी। अच्छा, हर प्लेट दे विच इतनी इतनी लंबी मछली दी बोटी सी। शाह जी कितनी? इतनी लंबी, मैं खुद उन्होंने नु पूछया है, मैं क्या किधरे बकरियां दा आलम चन्ना ते नहीं पका लिया। शाह जी किन्नी, ये जिस तरह तू प्लेट इच देख रहा से ना, असद उमर भी इंजी मेरी प्लेट अल देख रहा से। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि जब दोस्ती हो जाए, जब प्यार हो जाए, जब मोहब्बत बढ़ जाए, तो फिर वो क्या कहते हैं कि जिथे कहना जी उथो लेना की। इंशाल्लाह हमने उनसे मुआहदा किया है कि बेहतरीन गोश्त आपको सप्लाई करेंगे और फिर उन्होंने हमें 1 लाख नौकरी देने की भी कमिटमेंट की है। वाह वाह जी वाह। आप कुछ ज्यादा ही वाह वाह कर रहे हैं। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा वहां जॉब करते हैं? हाँ जी, पहले जॉब ही करता सी, हुण जेल च ਉਹਦਾ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਸੀ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। गौरी साहब ये सीरियस बात हो रही है, प्लीज यार। शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। शाह जी और क्या मिला हमें? जुनैद मियां, इतना सीरियस मुआहदा कभी पहले नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ किसी भी मुल्क का। यकीन मानिए कि उन्होंने गैस, नौकरियां, गोश्त के अलावा हमें और बहुत सी ऑफर की। क्या बताए ना भाई, एक तो हमने उनसे निजी मुआहदा भी किया है। अच्छा, वो क्या? ये आपके शो में बताए देते हैं। वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, फुटबॉल का। हमने उनसे 2 पास भी ले लिए। जी कतर में आपने स्टेडियम में जलसा भी तो किया है। अरे क्या याद दिला दिया। जब शाह महमूद ने कतर की फिजाओं में, कतर की हवाओं में, कतर की घटाओं में मुरस्सा उर्दू में मलफूफ लफ्जों की बौछार की, तो कतर के सहराओं से फूल निकलना शुरू हो। यकीन मानिए हमारी तकरीर खत्म होने तक पौधे इतने इतने बड़े हो चुके। बल्कि मेरा ख्याल है कि मेजबानों ने आपसे दरखास्त की होगी कि तकरीर जरा लंबी कर दे, इन पौधों पे आम भी आ जाएंगे।
जुनेद एमनी तेरा मुंह चौंसे वर्गा क्या जी आप वजीर खारजा है, कोई करने वाली बात करें। ते वजीरे खारजा नु चौंसा मनाउंदा है। मेरा मतलब है शाह जी वो कौन से पौधे थे जो आपकी तकरीर के दौरान ही इतने लंबे लंबे हो गए। यार तू यूरिया दा इश्तिहार नहीं देखिया 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੂਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੋ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਕੇ। जैसे कि पोल्यूशन खत्म करने के लिए आप मुल्क छोड़ दें तो भी हो जाएगी। सीरियस बात करें ना। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ जुगतिया हो गया होया है। अच्छा जय जी ये फरमाएं कि बाज लोग ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सी पैक के हवाले से सर्दमौरी का शिकार है, ये ठीक बात है? जुनेद मियां, ये दुश्मन थे जो ऐसी बातें करते हैं। वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन नहीं देखना चाहते। हमें भाई पाकिस्तान के चीनी ताल्लुकात तो इस कदर गर्मजोश हो चुके हैं कि डॉक्टर ने हमें चीनी मना की हुई है, उसके बावजूद हम हर वक्त जेब में चीनी की पुड़िया रखते हैं। ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम चीनियों को बहुत लाइक करते हैं। जी आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नॉन सीरियस रहे। नहीं तो सीरियस होना होवे तो कामरान खान साहब को ना जावा। नाज़रीन मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। देखो आज की ताज़ा खबर ये है कि जब ये सानिया पेश आया है तो उसके 2 घंटे के बाद क्राइम सीन को धो दिया गया है। अब कोई इस पुलिस से पूछने वाला नहीं, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछने वाला नहीं है कि क्या आपको कोई कानून ये इजाज़त देता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब कत्ल हुआ था उसके बाद भी यही स्यापा पड़ गया था कि जी क्राइम सीन को वॉश किसने किया, और एक अरसे तक ये मामला जो है ज़ेरे बहस रहा था। यार जुनैद ये जो सानेहा हुआ है साहिवाल वाला, वैसे तो हम अक्सर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाकया पेश आए तो अवॉइड करते हैं, चूंकि सारे पाकिस्तान का मीडिया फिर उसके पीछे पड़ा होता है और टेंशन में फिर इजाफा ही होता है, जितनी जुबानें उतनी टेंशन ज्यादा। मगर जब बात इस नहज तक पहुंच जाती है तो फिर बात करनी भी चाहिए। जी हमारे वैसे उन 3-4 दिनों में हमारा शो नहीं था जब ये इतना बड़ा सानिया गुजरा है, तो आज ही हमारा पहले दिन शो हो रहा है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बात करनी भी चाहिए, बात करने से घबराना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो सानहात हैं, जो हादसात हैं, वो आइंदा के लिए इन हादसात से बचने का जरिया बनते हैं, कानून साजी की जाती है। बल्कि दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन जो 50% एटलीस्ट जो कानून साजी है वो किसी न किसी वाक़े के नतीजे में की जाती है। लेकिन एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो इतनी तेज़ी के साथ रूनुमा होते हैं, इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं कि शायद हमारे आंसू भी खुश्क हो गए। अब तो मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें रोने के लिए भी किसी गम की या वाक़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी साने की ज़रूरत पड़ती है। कोई साने हो तो ही हमारे आंसू निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि अब ये मामूल के गम मुझको रुलाने से रहे, अब ये मामूल के गम मुझको रुलाने से रहे, सानहे चाहिए अश्कों की फरावानी को। अब हम आंसू बहाने के लिए हमें बड़े बड़े सानहात चाहिए, तो उसी तरह का ये सानिया रूनुमा हुआ है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जाहिर है कि किसी तरफ से भी कोई बहुत अच्छे रवैये देखने में नहीं आए। हुकूमत, अपोजिशन, पब्लिक, मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने एक तरह से वो ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैं सच्ची बात बताऊं, ये असेंबली में JUI के मौलाना अब्दुल वासे साहब ने, गो के उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, उन्होंने सबसे आसान अंदाज में एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें इस वाक़े से ये सबक सीखना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, हमें कानून साजी करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है मुकन्ना ही उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब कानून साजी क्या की जाए? देखो आज की ताज़ा खबर ये है कि जब ये सानिया पेश आया है तो उसके 2 घंटे के बाद क्राइम सीन को धो दिया गया। अब कोई इस पुलिस से पूछने वाला नहीं, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछने वाला नहीं है कि क्या आपको कोई कानून ये इजाजत देता है।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब कत्ल हुआ था उसके बाद भी यही स्यापा पड़ गया था कि जी क्राइम सीन को वॉश किसने किया, और एक अरसे तक ये मामला जो है ज़ेरे बहस रहा था। यहाँ पर 2 घंटे के बाद जो है क्राइम सीन को धो देना क्या मायने रखता है? फिर 72 घंटे के बाद उस गाड़ी का फोरेंसिक यानी टेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया जिसमें शीशा था, सामान था, गाड़ी के अंदर खून था, लाशें थीं। बहुत आसानी के साथ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन 72 घंटे तक ये काम नहीं किया गया। अब आइंदा के लिए अगर आप इस सूरत हाल से बचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में संजीदा नजर आती है, लेकिन क्या चंद एक अफसरान को उनके ओहदों से हटा देने से आपका मकसद पूरा हो जाएगा? जरूर, यानी जिम्मेदारान को सजा जरूर मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आइंदा के लिए कानून साजी तो की जाए ना। मसलन हम पंजाब पुलिस की वर्दियों पर जितने पैसे उड़ा चुके हैं, बार बार वर्दियां तब्दील करते हैं, मेरा ख्याल इससे थोड़े से और पैसे डाल के हम कैमरास खरीद सकते थे जो पुलिस की गाड़ियों में, जिसको डैश कैम कहा जाता है, पुलिस की गाड़ियों के डैशबोर्ड पे लगा होना चाहिए, पुलिस की यूनिफॉर्म पे लगा होना चाहिए। अमेरिका ने ये काम किया है, उन्होंने ये जितने पुलिस सार्जेंट्स हैं इनको भी ये कैमरे दिए हुए हैं, गाड़ियों में भी कैमरे लगे हुए हैं। उससे वहां की जो पुलिस ब्रुटैलिटीज है, जो पुलिस के मजालम कहा जाता है, उनमें 86% कमी वाकई हो गई। तो क्यों नहीं हम ये काम कर सकते सारे? बहुत ही ढिलपुना दिखाया इन्होंने। ने ये भी सुना है कि जब ये वाकया पेश आया है तो सीएम साहब और आईजी पंजाब इकट्ठे थे, और सीएम साहब को जब इतला मिली है उन्होंने आईजी साहब से पूछा जी को ऐसा वाकया पेश है, उन्होंने कहा मैं नहीं पता जनाब, पता कर लेंगे। भाई जिसको चाहिए था कि आईजी को बताए, कोई एडिशनल आईजी जो उधर जिम्मेदार है वो किधर गया है, या जिसको चाहिए था कि सीएम तक या इन दोनों तक इतला फौरी तौर पे पूछा था। कितना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया और आईजी पूछ रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि कोई भी मुहज्जब मुल्क होता तो विद इन नो टाइम जो हेड ऑफ पुलिस है उसको तो पता होता और पूरी डिटेल के साथ पता चल सकता था कि क्या हुआ है। और मेरा ख्याल है कि 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के आईजी को तो पता होना चाहिए था कि जिम्मेदारान कौन है। वो ऑफिशियली बाद में बेशक डिक्लेयर करता, लेकिन पुलिस के आईजी को ये पता चल जाना चाहिए था कि असल में वाकया हुआ क्या है 2 या 3 घंटे 4 घंटे के बाद। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है तुम बता रहे हो, अफसोसनाक ही है ना यार। इसके बाद कई ऐसी बातें सामने आई हैं मीडिया में कि ये जो आईजी साहब लगे हुए हैं, सियालकोट वाले वो जजों के मर्डर में भी उस वक्त वहां थे, ये श्रीलंका की टीम पे जब हमला हुआ उस वक्त लाहौर में थे, और उस वक्त की किसी कमेटी ने ये फैसला किया था बाकायदा कि इनको कभी भी फील्ड पोस्ट ना दी जाए। और फील्ड पोस्ट ऐसी मिली कि पंजाब पुलिस के सरबराह। हाँ जी, सबसे पहले तो ये पता करे ना वीर आजम साहब के ये किसने लगवाया है। और फिर देखो ईमान से उन बच्चों को देख के जो बेचारे जिनके वालिदैन मर्डर हो गया, जिनका जो शहीद हो गए हैं, वो बखुदा इतना रंज होता है कि इनको कौन क्या अजाला होगा। आप कितने को अफसर निकाल देंगे, इनका क्या ताल्लुक है अफसरों के निकलने से। पत्थर दिल आदमी भी जब वो मंजर देखता है, उन बच्चों के चेहरे जो एक नजर देखता है तो वो चेहरे जो है वो जहन और नजर से महव नहीं कर पाते। और मेरा मतलब है, मैं ये सोच रहा था कि ये जो अफसर मुअत्तल हुए हैं या सीटों से हटे हैं, उनसे क्या होगा, उन बच्चों को क्या असर पड़ेगा। ये उनकी सोच भी है ऐसी। उनको क्या पता है कि अफसर उतार दिए हैं हमारे वालिदैन के मर्डर की वजह से, उनको क्या पता है, कुछ भी नहीं। मासूम से वो बेचारे फरिश्ते से बच्चे, उनकी सारी जिंदगी पहाड़ जैसी पड़ी हुई और माँ बाप को उनसे छीन लिया गया। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बसंत मनाने या ना मनाने के हवाले से कम व बेश हर साल ही एक बहस का आगाज हो जाता है। इस साल भी ये बहस उसी शद्दोमत के साथ जारी है। खैर, अब तो ये फैसला हो चुका है कि बसंत नहीं मनाई जाएगी, लेकिन बहस है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे आज के मेहमान भी हैं, एक पतंग साज और एक पतंग बाज। मंगा लो जी डांगा मंगा लो डांगा। मैं इन्होंने वादा करके ले आया मैं कि तुम जांदी लम्मिया पा के बहुत मारा। इस तरह मसला हल नहीं होता ना, इस तरह मसला हल नहीं होता। मेरा ख्याल उनका मौकफ जान लेने में तो कोई हर्ज नहीं। जान लो तो कटनियां डांगा ही पैनियां।
यार डांग हर मसले का हल नहीं होता। चले उन्हें तो तुम पतंग साज जो है उनको डांग मार लोगे, वो जो पतंग बाज है उसका काम तो मसवाक से भी चल जाएगा। बेशक माचिस से तीलियां कड्डो छड्डो ना इन्हां नूं। ओ भाईजान छत का खर्चा हुआ है, सारे खर्चे लगे हैं, मेरी तो नाक कट गई दोस्तों में। तुम्हारी नाक कट गई है तो रो रहे लोगों के बच्चों के गले काटते हो। भाईजान ये जिस दिन में एक बसंत का दिन होता है ना, आप डबल सवारी और मोटर बाइक पे पाबंदी लगा दें। तुसी नहीं बात आना, सिर्फ मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगाने से क्या होगा? जो पैदल जाते हुए बेचारे अपनी इशारा काट बैठे हैं, जो छतों से गिरते हैं बच्चे, जो बिजली की तारों के साथ चमड़ के बेचारे मर गए हैं, जो बेवकूफ आदमी गुड्डियां लूटते हुए पतंगों के पीछे भागते हुए कारों के नीचे आके मर जाते हैं, उनका क्या करना है? पहलवान जी अब जवाब दे, मेरा तो आपने 60-70 हजार रुपया जाया करवा दिया। और सोने तू अपनी तफरीह ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤੰਗਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀਏ? और रोजी रोटी तुम्हारी बच्चों को मार के जाती है, जाहिल आदमी। तेन खुला ग्राउंड च ना छे उथे चार के रज लै। रोटी रोजी तुम्हें रोटी रोजी की पड़ी हुई और 36 काम है जो किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। उस रोटी को तुमने क्या करना है जो किसी को नुकसान पहुंचा के तुम हासिल। यार काट लो डांगा मैं जो तेन कहेंगे। रोजी रोटी की आड़ में आप लोगों को मौत का सामान बेचने की इजाजत दे दी जाए। कौन सा मौत का सामान जी? मैं तो रेशम की तरह मुलायम डोर बेचता हूँ। उनको पकड़े जो केमिकल और शीशे वाली डोर बेचते हैं। अच्छा जी, ये बात अब कौन डिसाइड करे कि ये किसने बेची? बिल्कुल सही। आप यार खुदा के वास्ते को तफरीह और ढूंढ लो, को कारोबार और ढूंढ लो, उस बच्चे को तफरीह और मिल जानी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक स्यापा पड़ा हुआ पूरी कौम को, और आप चंद लोग जो बिल्कुल ही चंद लोग जो हजारों क्या सैकड़ों में भी नहीं है जी। आप लोगों ने हर शहर में 50, 60, 70 लोगों ने अजाब डाला हुआ कि नहीं हमने यही कारोबार करना है, हमारी इधर से ही रोटी है। उन लोगों ने हमारी यही तफरीह है और खुदा दा वास्ता जी। अच्छा आपने कहा कि कोई और तफरीह ढूंढ ले, तो ये बच्चा कौन सी तफरीह कर सकता है? तो यार 36 गेम है इस बच्चे की सेहत के मुताबिक भी। चलो अध को पा मखाने ले लवे उन्हां नाल खेडदा रहे, ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਭੰਬੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ खींचे। या जिस तरह जंगल में बंदरों के बच्चे दरख्त की टहनियों के साथ लटक के झूलते हैं, वो गेम खेल। तू बल्कि घर ही इंजॉय कराया कर। जो जी तेरी सेहत है ना, घंटा बेहोश हो गए घर, घंटा उठ पे, फिर घंटा बेहोश हो गए, फिर यार टप च पानी पा के ਉਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। टप भी ज्यादा लगेगा यार, कद ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਟਰੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਤੇ ਲੈਂਥਾਂ ਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ। पहलवान जी गल करो, तुम तो कहते थे मेरी बड़ी पहुंच है, ये तो बोलने नहीं दे रहे। और सोने साडी पहुंच सिर्फ थाने तक आ, मीडिया तक नहीं। मैं तो क्या सी ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। यार कोई ऐसी गल नहीं, दो सज्जे हो वो दो खब्बे हो। यार और कुछ नहीं तो गोभी में घुस जाओ, खातून काटने लगे कीड़ा तो भाग जाओ। हाँ, या किसान स्प्रे करने लगे तो पहली शूं ते ही दौड़ जा। भाईजान मैंने छत पे अरेंज किया हुआ, आप मुझे खेतों में लेके जा रहे क्या अरेंज किया हुआ है? मौत का सामान अरेंज किया हुआ है। नहीं नहीं, मैंने तो बस वो खाली डेक और लाइट्स और वो पतंगबाजी का ही, बाकी तुम्हें पता है कि हर साल कितने बच्चे या कितने लोग तुम्हारे शौक की भेंट चढ़ जाते हैं? पता है? नहीं तो डेक छत ते कद ਲਈ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। वो डेक तो इस वास्ते लगवाया ना कि पहलवान जी वहाँ पे रॉक एंड रोल भी बड़ा अच्छा करते हैं। ਉਹ ਕਾਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬਹੁਤੀ ਪਈ। ਤੋ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਉਹ ਗੌਰੀ ਬਾਊ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੇਵੀਆਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਪਾ ਲਓ ਸੇਵੀਆਂ ਸੁੱਕਣੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਵੇਚ ਸਕਣਾ, ਫਰੂਟ ਬਿਹਤਰ ਵੇਚ ਸਕਣਾ, ਛੱਡ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਚਲੋ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। एक ही त्योहार रह गया पसंदबाजी का। ये किसने कहा कि एक ही त्योहार रह गया, एक ही खुशियों का बहाना और थोड़े खुशियों के मौके? यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਕੱਢ ਲਓ ਡਾਂਗਾ।
यार उसकी सुनो तो सही ना क्या कह रहे हैं। पाज जुनैद को सुनने का फायदा है। मुझे ये बताओ कि बसंत में माँ सिवाय इसके कि ये कहते हैं जी तफरी है, ये बनाने वाले बेचने वाले कहते हैं जी रोटी रोजी लगी। नहीं इनका मौका इसके अलावा अगर एक भी को इसका फायदा है, नुकसानातों की तो एक पूरी लिस्ट मौजूद नहीं, मेरी बात सुनो ना, इन लोगों का मौकफ ये है कि अगर धाती डोर पे पाबंदी लगा दी जाए, केमिकल डोर पे पाबंदी लगा दी जाए, जिससे अमवात वाक़ होती हैं, तो फिर इजाजत दे दी जाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ डोर का ही मसला नहीं है, ये तो एक बड़ी खतरनाक चीज है ना जी, कि बच्चे ही मर गए हैं कई बेचारे जी। इसके बाद तो बहस वैसे बनती नहीं सर। उसके अलावा भी आप देखें कि ये हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे देसी मुआशरे के अंदर बिल्कुल ही अनफिट तफरी है। छतों पे चढ़ के डेक लगा के इधर उधर झांकना, और औरतें नको नक हुई होती हैं, फायरिंग होती है, कुछ साथ मिल जाती हैं, बिल्कुल, कुछ गालियां बदुआएं दे रही होती हैं, फायरिंग अलहदा कर रहे हैं, फायरिंग से कई मर गए हैं, छतों से गिर के कई मर गए। और दूसरी बात ये है कि धाती डोर पर पाबंदी की बात जो है कई सालों से हो रही है, आज तक धाती डोर पर पाबंदी लग सकी है, कई बार कोशिशें हुई हैं लेकिन पाबंदी नहीं लगा पाई। नहीं लगी तो फिर मेरा मतलब है कि जो कैंसर इलाज ही नहीं जिसका मुमकिन, वो हिस्सा काटना ही पड़ता है फिर जिसका। तो ये बंद कर दें, खत्म कर दें, इतनी क्या जरूरत यार, फिर बहस कर दो, नांगा कड्डो। क्या कर रहे हैं भाईजान, मैंने अपने बड़े भाई से इंग्लैंड से लाख रुपया मंगवाया, वो भी सारा जाया हो गया है, मैं क्या करूं। तो ऐतकी ते लाख रुपया मंगाया ना भाई से इंग्लैंड, अगले साल भाई नु ही मंगा लिया, उन्हें मंगा के तो इथे लाया तो कट लीए फिर डांगा। वापडा का लेस्को का बड़ा नुकसान हुआ है जी, वो ट्रांसफार्मर मरता नहीं, उड़ जाता है। ये देखें, ये वाकई बड़ी अहम चीज है। वापडा का बेहद नुकसान होता है, जानी माली नुकसान होता है, इखलाकी बड़ा नुकसान होता है। सारी सारी रात छतों के ऊपर वो वाहियाती, वो शराब चल रही होती है, वो डांस मुजरे चल रहे होते हैं। कोई शर्म हया होनी चाहिए इस माशरे के अंदर। नहीं ये काम ठीक, जो चंद लोग पुराने इस पतंगबाजी को एंजॉय करने वाले थे, वो तो अब वैसे ही नहीं रहे रुए। जो दूसरे आगे जो नए लोग आए हैं, उन्होंने तो पतंगबाजी को वैसे ही एक फहाशी सी बना दी हुई है। अब वैसे तो फहाशी महसूस ही नहीं होती हमें, विद एक्सक्यूज माफी के साथ। अब फहाशी तो वैसे महसूस होनी मुक गई हुई है। कुछ थोड़ा बहुत खुदा का खौफ करना। और सर बार बार बिजली जाने से आने से घर का फ्रिज खराब, टीवी खराब, कोई मशीन खराब, मोटर खराब। बेटा इन्हां दे विचों एक चीज भी है तेरे घर दे विच, मिट्टी ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ और यार खाता पीता बंदा है, और जो तुम कह रहे हो ना घड़े के ऊपर चप्पन नहीं रखता, वो इसलिए कि पानी में देख के कंघी करता। ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਨਲਕਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮਲੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। अब वो है नया, पीर के कहने पे बांधी हुई। पहलवान जुगते तुमने सारी अच्छी की हैं, मगर कड लो डांगा। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आरपीओ मुल्तान ने क्या किया, उन्होंने कहा जी गल सुनो, मेरे एरिया च जेड़ी भी तूड़ी वाली गड इस तरह वायलेशन करती हुई गुजरेगी ना जी, अपने हुजम से ज्यादा तूड़ी लद के, वो जितनी जितनी तूड़ी गड से बाहर होगी ना जी, रेडी से बाहर होगी, उतनी उतनी काट के फेंक दो। जबरदस्त, सही है। उन्होंने एवं को 10-15 इस तरह की गड्ढे काटी हैं, सब सीधे हो गए। उन्होंने कहा चलान नहीं करना, चलान नहीं करना, जितनी तूड़ी बाहर है उतनी बढ़ दो, निकालो उसमें से उसे, सारे सीधे हो गए। बिल्कुल। एक और बड़ा मजेदार इकदाम उन्होंने गोगा किया। खुश हो गया कि जहां पर भी तूड़ी निकालेगा गोगा पहुंच जाएगा। अच्छा सूखी तूड़ी है नाल दाल इनू अपनी खड़नी पड़ेगी। अच्छा जी, ये पहले भी हमने एक सेगमेंट किया है वो सानिया साहिवाल के हवाले से जी। उसी से रिलेटेड मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी कि यहाँ पे जब कोई कानून साजी होती भी है छोटी मोटी, कोई एक एग्जाम्पल भी सामने जब आती है, तो उसके साथ हमारी आवाम का क्या रवैया होता है। वो क्या है कि जिस तरह की आवाम है फिर उसी तरह के हुक्मरान मसल्लत कर दिए जाते हैं।
इस बात से भी हमें कुछ ना कुछ अब सीख लेना चाहिए कि हमें भी ठीक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। फिर हमारे ऊपर हुकामे बाला भी ठीक हों। बड़े ही अफसोसनाक एक पहलू की तरफ मैं बात करनी चाह रहा हूँ, निशानदेही करनी चाह रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये हेलमेट का जो प्रोसीजर शुरू हुआ या कानून शुरू किया गया कि भाई हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल ना चलाएं, वो इसलिए हमें ज्यादा दुखता है कि हमने अपने शो में उसमें बहुत ज्यादा शोर मचाया और फिर अल्लाह अल्लाह करके ये हो भी गया। लो जी पीछे जो उन्होंने कहा कि लो जी जेड़ा जेड़ा हेलमेट ना पहन के आएगा पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप वालों को ऑर्डर कर दिया गया कि उसको पेट्रोल ना डाले। इंतहाई शर्मनाक जो हरकत हुई है ना पेट्रोल पंप वालों की तरफ से, जो कि करोड़पति लोग होते हैं, कम से कम करोड़पति बंदा होता है जिसका पेट्रोल पंप हो, पेट्रोल पंप का मालिक जो है। उन्होंने क्या सहूलत मुहैया की है ये कानून तोड़ने वाले लोगों को कि जिसके पास हेलमेट नहीं उन्होंने हेलमेट अपने पंप पे रख दिए। जरा सा पर एक बंदा हेलमेट पहना रहा है कि चल पुआला पेट्रोल। यार खुदा के वास्ते कुछ शर्म करे, कुछ हया करे, कुछ बेहिसी को छोड़ दे खुदा के लिए। कितने का पेट्रोल डलवा लिया उस मोटरसाइकिल वाले जो बगैर हेलमेट के आपके पंप पे आया? कितने का? 200, 300, 400, 500, 1000 का डलवा लिया। आप करोड़पति लोग हैं, आपको क्या फर्क पड़ना है? कुछ खुदा के वास्ते शर्म करें, कुछ थोड़ी सी हया करें, साथ दें हुकूमत का। ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाले महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, इनके साथ अगर आप मिल के कंधा नहीं मिलाएंगे तो कभी भी मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। ये आपकी भुल फहमी है कि आप कहें जी कि हुकूमतें ठीक कर लेंगी मुल्क। नहीं नहीं नहीं, आपको खुद भी साथ खड़े होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। फिर मुल्क ठीक होंगे। बिल्कुल। ये देखो ना, जैसे मैं एक और जुनैद मेरे जहन में बात आ रही थी, ये भी हमने अक्सर शो में की है कि ये जो तूड़ी की गाड होती है, जिसको तूड़ी का जहाज कहा जाता है, वो पूरे सड़क पे फैला होता है। और मुझे एक पुलिस ऑफिसर बता रहे थे कि ये एक जो है ना जी गाड, इसमें 1.5 ट्रक तूड़ी डाली जाती है, यानी 3 ट्रकों की तूड़ी 2 गड्ढों के ऊपर वो ले जाते हैं। एक गाड का किराया उनका बच जाता है, इसलिए ये वायलेशन होती है। अब पुलिस के हाथ में क्या है कि जी चलान करो, 200 रुपये का चलान कर लवो, ओदा जेड़ा 2000 रुपया ट्रक का किराया एक बचा है वो तो बच गया। वो 200 रुपया की आराम से पर्ची लेता है, उनसे कहता है अच्छा जी खुदा हाफिज। गड फिर उसी तरह ही कोई 100 किलोमीटर पूरी सड़क रोक के जा रही होती है, ना उस पे कोई लाइट लगी होती है, ना कोई इंडिकेटर, ना पता चलता है। और बिल्कुल इससे भी ज्यादा खतरनाक वो जो सरिया ट्रॉलर्स पे लादा होता है और बाहर निकला होता है। पहली बात तो ये कि इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए। अगर आप इजाजत देते भी हैं तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि उस पर लाइट लगी हो। अगर आप एक तार लगा के 2 लाइटें लगा देते हैं, उस पर कितना खर्चा आएगा? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। नहीं जी, एक आरपीओ है मुल्तान के कोई लगे हुए, उन्होंने ऐसी अच्छी राह दिखाई है कि मुझे मजा आ गया कि इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस चाहे तो फिर सीधा कर सकती है। वो आरपीओ मुल्तान ने क्या किया, उन्होंने कहा जी गल सुनो, मेरे एरिया च जेड़ी भी तूड़ी वाली गड इस तरह वायलेशन करती हुई गुजरेगी ना जी, अपने हुजम से ज्यादा तूड़ी लद के, वो जितनी जितनी तूड़ी गड से बाहर होगी ना जी, रेडी से बाहर होगी, उतनी उतनी काट के फेंक दे। जबरदस्त, सही है। उन्होंने एवं को 10-15 इस तरह की गड्ढे काटी हैं, सब सीधे हो गए। उन्होंने कहा चलान नहीं करना, चलान नहीं करना, जितनी तूड़ी बाहर है उतनी बढ़ दो, निकालो उसमें से उसे, सारे सीधे हो गए। बिल्कुल। एक और बड़ा मजेदार इकदाम उन्होंने गोगा खुश हो गया कि जहां पर भी तूड़ी निकालेगा गोगा पहुंच जाएगा। अच्छा सूखी तूड़ी है नाल दाल इन्हों अपनी खड़नी पड़ेगी, कुछ तो फ्री आएगा ना। अच्छा एक और सुनो जरा, एक और बड़ी मजेदार चीज उन्होंने की है। कई बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, ये मुल्तान की जो है ना जी, इसको इंडस हाईवे शायद कहते हैं, वहां पे उन्होंने कहा जी कि जो ओवर स्पीड लोग हैं उनके लिए कैमरे हो तो हम पकड़ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा जी किस तरह फड़िए जनाब, साढ़े को कैमरे कोई नहीं। उन्होंने कहा 5 मिनट तुहानू मैं हल दसना। उन्होंने एक टिकट
ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ 500 ਦੀਆਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ कैसे लेने हैं हाँ पहले मैं आपको तरीका बताता हूं उन्होंने कहा कि ये है आपका 6 घंटे का सफर यहाँ से यहाँ तक मेरे एरिया में 6 घंटे इधर से जो चलेगा वो इधर पहुंचेगा उन्होंने दोनों जगहों के सेंटर में एक नाका लगा दिया इधर से जो बस घुसती है ना हाँ जी ओवर स्पीड की वजह से बेशुमार बसें सड़क पे उल्टती थी हजारों लोग यहाँ पे मर गए मर गए हैं हैं, हाँ बस वाले एक ड्राइवर की शोखी की वजह से और टाइम बचाने की वजह से हाँ जी वो इधर से जो बंदा एंटर होता है ना उसको वो टिकट देते हैं उसमें टाइम लिख देते हैं जब वो सेंटर पे पहुंचता नाके वाला कहता है इधर ले आ भाई टिकट किथे ही ये 3 घंटे का सफर था तू 2.5 घंटे च क्यों तय किया है चलान नहीं वो करते वो कहते हैं इधर गड्डी सैडल कर ले तू आधा घंटा तेज आया है इतने 2 घंटे खलोता रहो फिर तेन जान दे जबरदस्त ये कभी मोटरवे वाले भी करते थे अब शायद नहीं करते मोटरवे कितना वालों ने भी ये खूबसूरत हाल है। असूल रखा था फिर इधर से टिकट दिखा के इधर से नवी टिकट लेके जाओ इधर पहुंचो दूसरी साइड पे फिर इतने जो 3 घंटे तो पहले पहुंचे तो तेन सैडल खिलार दिया सही है सब सीधे हो गए हुए हैं बेहतरीन उधर इसका मतलब ये है कि अगर कोई हल चाहे तो हो सकता है बिल्कुल सही हाँ जी खुदा वास्ते अगर सारे मिलके हम हल चाहेंगे तो हर चीज का हल निकल आएगा हाँ जी ये रोजाना जो सैकड़ों लोग मर जाते हैं पाकिस्तान की सड़कों सड़कों पे ओवर स्पीड से और ये सरिये बार और तूड़ियां की गड्ढे बार हाँ जी और लाशें इस तरह बिखरी होती हैं खून सड़कों पे बिखरा अभी 27 लोग मरे हैं 3-4 दिन हुए हैं हाँ जी हाँ जी आग लग गई इसको बचाएं यार इस तरह बेमौत मर रहे हैं जो लोग इनको बचाएं बेचारों को बिल्कुल। खुद थोड़ा सा अल्लाह का खौफ खा लें थोड़ा सा ये सिर्फ कानून ही नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह है ये बहुत बड़ा गुनाह है आप किसी की जान के हाथों हो जाएं आप किसी की जान के पीछे पड़ जाएं एक बंदा जो है वो 70-80 बंदे बस चबा के और शोखा हुआ होता है हाँ। बसों की रेसें लगा रहा होता है या अपनी ज्यादा फेरे लगाने के लिए गड्डी को Overspeed, हाँ। फुल तुनना होता है उसने कुछ थोड़ा सा हया कर ले बस कर दे अब और पुलिस वाले भी जो हैं ये जो मिसालें मैंने दी हैं दोनों इससे ये साबित होता है कि अगर बंदे अगर चाहन ना जी तो हर चीज का हल वो निकाल सकते जी बिल्कुल इसी तरह ये जो ट्रक ड्राइवर आम जो हैं ये 20 घंटे ट्रक चलाते हैं बाहर के मुल्क में ये अलाउ नहीं है जी बिल्कुल सही उन्होंने भी यही सिस्टम रखा हुआ है 2 ट्रक में अगर ड्राइवर हैं तो वो छोड़ते हैं आप कितने बजे कहां से चले थे हर चीज उनको नोट होती है हर चीज को वो देखते हैं कोई तरीका बना लेना चाहिए अब बड़ी हो गई है पूरी दुनिया में हम बथेरा व्यस्त हो गए हैं बिजली को भी छड़ो यार बड़े बंदे हमने कुर्बान कर दिए हाय हाय कई बच्चे यतीम कर छोड़े हैं हमने अपनी ये निकी निकी शोखियों की वजह से और छोटी छोटी हरकतों की वजह से और छोटी सी मिस्टेक है ना हाँ जी। छोटी सी मिस्टेक भाई तुम्हें क्या मिल जाएगा इतना तूड़ी का जो तुमने ये जहाज बनाया हुआ है 2 जहाज अगर तुम लेके जा रहे हो एक ट्रक का तुमने पैसे बचा के किराया बचा के क्या तीर मार लिया उसी गड्ढ की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई बस उलट जाती है कोई 5-6-7 बंदे मर जाते हैं तो लानत है उस 2-2.5 हजार रुपए पे जो तुमने बचा लिए क्या किया तुमने वो बचा के कई जिंदगियां बर्बाद कर घर दी उजड़ कई गए। जानें जाया कर दी ये हमारे आर्टिस्ट शौकी खान साहब वो इसी वजह से ही हलाक हुए थे कि वो पीछे तूड़ी का हुजूम बड़ा हुआ था ट्रक का एरिया इतना था हाँ बेचारे अपने कैरी डब्बे पे जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ था मर गए थे रोज हादसा अजीजी रोज हादसा हो रहा है फिर हम लोग समझ नहीं रहे हाँ जी मेरा मतलब टेलीविजन की स्क्रीन ने अखबारात खून से भरे पड़े होते हैं फिर अक्ल शऊर नहीं आ रहा और फिर कोई ऐसा तरीका कार नहीं बन रहा हमसे कोई कानून इस तरह का नहीं बन रहा जो बड़े आराम से बन जाता है जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ कि टिकट आप अगर इशू कर दे किसी की जरूरत नहीं है भाई आगे तेज चलाने की वो तेज नहीं चलाएगा अपनी गड्डी उसके कंट्रोल में होगी तो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे जी बिल्कुल नाज़रीन कहते हैं मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो दिल में उतर जाता है और इसी मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है ये था आज का अस्बहाल खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफिज